हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। अभी हमने अपनी 50 डेज 50 मॉक सीरीज में सीजीएल के ऑलिव बोर्ड वाले 4 टीयर 1 के मॉक्स लगा लिए हैं और मैंने अपलोड भी कर दिए हैं वो। ठीक है, अभी फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जीएस से स्टार्ट करेंगे। गांधी इरविन पैक्ट marked the end of civil disobedience movement. In March 2024, who was appointed as the Director General, एनआईए के डायरेक्टर जनरल? ये नहीं पता। According to 2011 census in India, which of the following is the best performing state in respect of sex ratio? In the group of 0 to 6, who among the following is associated with the musical instrument sitar? सितार से which fossil fuel reserves are found in abundance in the offshore regions of India? Offshore regions of India में कौन से fossil fuels मिलते हैं? Offshore नेचुरल गैस, आयरन, लिथियम। क्या नेचुरल गैस है या लिथियम है? ये हो सकता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है इस जीएनपी माइनस नेट डायरेक्ट टैक्स। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दिस माइनस नेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीएनपी एट फैक्टर प्राइस। पता नहीं यार, ये रिवाइज नहीं हुई है इकोनॉमिक्स काफी टाइम से। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, हो सकता है सीईओ। The tableau of which ministry has secured the first prize at the Republic Day Parade? Article 74 provides for Council of Ministers to advise the President. This advice it is not binding. जहाँ तक है not binding ही होनी चाहिए. If the size of the image formed by the concave mirror is smaller, in February 2024, which state government has decided to provide interest-free loans, sorry, under the new government scheme SWAYAM? What is the relationship between personal income and disposable income? जो disposable income होती है वो personal income minus direct taxes। ठीक है, ये होती है disposable income। How does atomic radius change? The Pandanallur style of Bharatanatyam is mainly attributed to Karam is a major native harvest festival of Dash is a type of phylogenetic classification which uses the chemical constituents of the plant to resolve confusions are also used by taxonomists. Chemical constituents, phylogenetic, which uses the chemical constituents. तो gamma taxonomy हो सकती है. Which of the following rivers, while in Tibet, carry a smaller volume of water and less silt as it is cold and dry? तिब्बत से तो ब्रह्मपुत्र निकलती है। As per World Happiness Report, which has remained in the bottom unhappiest nation, ये कौन सा हो सकता है? ओमान, पाकिस्तान, unhappiest, पता नहीं यार, हो सकता है पाकिस्तान, लगा देते हैं एक तुक्का। In India, winter rainfall occurs in which of the following coasts?
Which of the following is a D block element? Who was the only Indian Governor General of independent India and hence the last as well? Indian Governor General, who was the only Indian general? Narasimhan. Which of the following dynasty is considered to be the first non-Kshatriya dynasty? In cricket, what is the term used for a batsman who is dismissed by being hit on the pad by the ball? Being hit on the pad by the ball. Got ball stumped, and the umpire decides that the ball would have hit the wicket and it had not been intercepted. Being hit on the pad of the ball, pad by the ball. क्या है यार ये क्रिकेट के बारे में मुझे पता नहीं है ज्यादा. Who is dismissed by being hit on the pad by the ball. I decides that the ball would have hit the wicket. हो सकता है ये हो, had it not been intercepted. Which of the following is not a biotic component in a habitat? एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, बैक्टीरिया होती है, बायोटिक जिसमें जान हो तो उसमें बनी है. निशा गांधी डांस फेस्टिवल केरला का, पता नहीं. ठीक है. कुछ दिनों से मेरी जीएस में ज्यादा अटेम्प्ट कर दे रहा था मैं, आज थोड़े कम किए हैं. She travels a lot in many countries, which helps us to grow as she speaks polyglot जो बहुत सारी spellings बोलती है, languages बोलता हूँ. Penelope's web, a task project with many difficulties. Industrious मतलब मेहनती, diligent, formidable. She approached the daunting challenge of starting a new business and great determination. Daunting, formidable. Shara's keen dash of detail allowed her to negligence, dismissal, scrutiny of detail allowed her to identify errors that other might have overlooked. The manager dashed to the small thefts happening in the store, hoping they would stop on their own. The manager turned a blind eye. Were you invited to the event by her? वर है तो डिड आना चाहिए. डिड शी इनवाइट. ठीक है, डिड के साथ भी वन भी आएगा तो इनवाइट. ड्रिल मतलब डिक्रीज करना, सॉरी, dwindle का ऑपोजिट एक्सपेंड करना. Things will continue as they are for the foreseeable में आई नहीं आएगा, पहले ही है. Incorrectly adorable सही है, lucrative में डबल आर नहीं. Genuine ठीक है, इसका ऑपोजिट. Veritable तो सिनोनिम है. Spurious शायद जो खर्च करता है. Sturdy flawless तो ये नहीं हो गया. Veritable sturdy spurious, हाँ spurious ही है. Woo मतलब जो फैशन में है, इसका ऑपोजिट. Outdated. Ahead of schedule. She managed ahead of the schedule. Ahead of the schedule मतलब अर्ली है वो, इसका ऑपोजिट लेट होगा. ये 5 क्वेश्चंस देखते हैं अभी थोड़ी देर में. ये टीचर 5. ठीक है. द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स. टीचर एज वेल एज इसके साथ आता है. neither no neither उसके साथ क्लोजेस्ट तो इसके साथ फर्स्ट. हाँ, एज वेल एज के साथ सिमिलीज के साथ फर्स्ट आता है. तो टीचर है तो वॉज आना चाहिए. वॉज डिस्कसिंग. कौन सा वर्ड आईएनजी फॉर्म में जो एक्शन दिखा रहा है. शी एंजॉयज पेंटिंग नहीं. आई एम पेंटिंग दी वॉल्स, बस यही है. महात्मा गांधी स्टडीड लॉ इन अफ्रीका होगा. लोकेशन क्लियर. शी ड्रीव अ पेंटिंग. अ पेंटिंग वॉज drawn by her. It had been क्या है it?
तो एलिफेंट तो डी से स्टार्ट हो सकता है जहाँ तक है। द एलिफेंट दैट बिलोंग्स टू द लोकल टेम्पल पास्ड अवे दिस मॉर्निंग। इट वाज अ फीमेल एलिफेंट एज्ड अराउंड 32 years. It had been living बिल्कुल सही है चलो। We must realize that learning from mistakes is an important part. Learning from mistakes is an important। ये जो is है ये लर्निंग के लिए है ना कि मिस्टेक्स के लिए, तो मिस्टेक्स आर मत लगाना। We must realize that learning from mistakes is an important part of life. Annoyance or distress at failure or humiliation। Annoyance or distress at failure or humiliation, इसी को कहते हैं chagrin। ठीक है, और किसी को नहीं कहते। 89. Tobacco consumption remains a persistent global concern exerting dash effects on both individual and society as a whole. Tobacco consumption remains a persistent global concern exerting dash effects, ठीक है, exerting detrimental effects ही तो डालेगा, as a whole. Despite widespread knowledge of its harmful consequences, the dash of tobacco continues to captivate many. The acquaintance of tobacco, the allure of tobacco नहीं है मास, तो acquaintance ही आएगा। Acquaintance of tobacco continues to captivate many, from smoking cigarettes to using other tobacco products. The dash of nature of nicotine keeps individual trapped in a cycle of dependency. From smoking cigarettes to other using other tobacco products, the dash nature of nicotine, the addictive nature होगा। The repercussions जो कि consequences होते हैं are far from reaching and encompassing severe health issues such as cancer, cardiovascular. Additionally, tobacco consumption places an immense dash on healthcare systems. Places an Tobacco consumption है places an immense dash on healthcare system and drains economic resources. ठीक है, places an immense burden burden place करती है जिससे इकोनॉमिक जा रही है। It is imperative to prioritize comprehensive tobacco control measures to dash the devastating, to mitigate, कम करना होता है devastating consequences को, और इधर burden ही आना चाहिए। places an immense burden on healthcare system। ठीक है, ठीक है, चलो रीजनिंग पे आते हैं। 134, चार में आठ जोड़ा, अगर यूनिट डिजिट से देखें, पाँच में आठ जोड़ा तो मैं देखूंगी नहीं इसमें क्या जोड़ रहा है, जीरो आना चाहिए। अच्छा, इसमें आठ माइनस करना चाहिए तो चार ही आएगा। ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा क्या क्या जोड़ा। आठ जोड़ा और 14 में पाँच जोड़ा, ठीक है, 54 जोड़ा इधर पे। इधर पे क्या जोड़ा, आठ, 97 में फाइव, ठीक है। तो इसमें क्या माइनस करना है, 58। जो 58 जोड़ रहे थे, अब इसमें 58 माइनस करना है, तो आठ माइनस किया तो चार आया, और 101 में से फाइव माइनस किया, 101 में से तो 96 आना चाहिए। हाउ मेनी ट्राइंगल्स, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, सॉरी, चार दो आठ, नौ दस ग्यारह, बारह तेरह चौदह, ठीक है, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 लग रहे हैं मुझे। ठीक है, 25 ही हाईएस्ट था, तो वो ठीक है। आठ का स्क्वायर प्लस वन, नौ का स्क्वायर प्लस वन है, तो आठ का क्यूब माइनस वन, 512 होता है ना, हाँ, नौ का क्यूब माइनस वन, बारह का क्यूब माइनस वन बिल्कुल है, उसका स्क्वायर प्लस वन नहीं है। छः का क्यूब माइनस वन बिल्कुल है, छः का स्क्वायर प्लस वन नहीं है। क्यूब माइनस वन है, प्लस वन है, ठीक है। एक सेकंड, ये क्यूब माइनस वन है, क्यूब प्लस वन हो गया, तो ये है क्यूब माइनस वन और स्क्वायर प्लस वन, ओके, ठीक। तो सब जगह डिवीजन का साइन है, मतलब डिवाइड तो होना ही है। 30 आएगा, अगर प्लस का साइन लेते हैं तो 96
-5 जो कि होगा 91, और इसका 300 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन, दिस प्लस 96 इंटू 5 इज इक्वल टू दिस माइनस जो कि 90 होगा, ये भी बहुत बड़ा है। तो 30 माइनस 96 इंटू 5 प्लस 300, ये नेगेटिव वैल्यू देगा तो दूसरा देने नहीं वाला। लास्ट का फिर भी चेक कर लेते हैं। 30 प्लस 96 बाय 5 माइनस 300 इज 310, ये हो सकता है। तो 45, 30 और -300, तो ये तो हो ही गया 150। 150 प्लस 60 210, ठीक है, ऑप्शन डी है। How many meaningful English words can be formed with the second fourth when counted from left to right? तो पहले इसको लेफ्ट टू राइट करो। अच्छा, लेफ्ट टू राइट में ऐसे गिन लेंगे, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, लेफ्ट टू राइट यहाँ से गिनेंगे। तो सेकंड वाला ई, फोर्थ है ए, और फिफ्थ है आर, तो ईयर बनेगा उसका एक ही वर्ड, मीनिंगफुल। ठीक है, ऑप्शन ए तो लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन वही है। फर्स्ट फिगर था, इधर पे पिक द ऑड वन आउट। अच्छा, पेंटागन दो बार और उससे एक साइड का हम चार, स्क्वायर है तो एक साइड का हम ट्राइंगल, छह साइड है उसकी एक साइड का हम पाँच, चार है और उसका बढ़ गया फोर्थ ही है तो ब्रेन। इसको कैसे लिखा है? छोड़ो इसे। कौन सा क्या है, शेयर्ड बाय टू वर्ड्स शेयर अ डिफरेंट रिलेशनशिप, जो कि बाकी है, ठीक है। भुज गुजरात में है कि बगुड़ा कर्नाटक, डाउनलिम गोवा, रणथंभौर राजस्थान, ये तो नहीं आता, ऐसे छोड़ो सीधा। 12 का इंटू 11, तो अच्छा, दिस इंटू दिस -1, 7 इंटू 7 -1 6, तो x इंटू एक्स -1 में क्या रखोगे? 15 इंटू 14, 15 इंटू 14 से आ रहा है 14 5 7, बिल्कुल आ रहा है। x इंटू एक्स -1 रखना है इसमें बस। आफ्टर इंटरचेंजिंग प्लस एंड डिवीजन का साइन, तो 300 प्लस, प्लस के बदले डिवीजन का साइन, आफ्टर इंटरचेंजिंग द टू, तो अरे यार, इसके बदले प्लस आया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई रहा, प्लस के बदले डिवीजन का साइन है, ठीक है। 3 इसको 5 बार काटेगा, 5 इसको 4 बार, 300 प्लस 4 -53 करना पड़ेगा, तो 247। ठीक है, इधर हैशटैग आना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा, ठीक है, सही है। ऑप्शन फर्स्ट पे घर है।
17, 17 में -2 उसका स्क्वायर, इसमें -2 का स्क्वायर तो नहीं है, ये -2 का स्क्वायर है, ठीक है यही अलग है। बाकी सब में, एक सेकेंड, ये अलग है, इसमें +2 कर दिया, वरना ये -2 का स्क्वायर, ठीक है। ABCDE, ई के बाद कोई फिगर नहीं आना चाहिए, नहीं है। दो चीज आई, दो के बाद चार चीज आई, चार के बाद अब छह आ जाने चाहिए अगर कुछ भी, और ये सब सॉलिड हैं, तो ऑप्शन ए ज्यादा सूट कर रहा है इस पे। छह फिगर्स होने चाहिए और वो भी सॉलिड। तो फर्स्ट है, सम ऑलिव इज लेमन ओनली अ फ्यू लेमन, का मतलब होता है कि सम लेमन्स आर ऑरेंज और सम लेमन्स आर नॉट ऑरेंज, ठीक है। सम लेमन इज नॉट ऑरेंज, बिल्कुल ये तो बोला ही गया है। ऑल ऑलिव्स बीइंग ऑरेंज, तो क्या ऑल ऑलिव ऑरेंज है? नहीं है, तो इसकी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। फर्स्ट एंड टू बोथ फॉलोज। ठीक है, इसकी देखनी है मिरर इमेज। ओके, ऑप्शन 4 एलिमिनेट, ये इसको काट नहीं रहा है, ठीक है, और अब पीछे से स्टार्ट है, तो ऑप्शन 2। ठीक है, क्या फर्स्ट वाला कहीं है इसमें या नहीं? हाँ, पहले मैं ये देख लेता हूँ, ये ऐसे है, ठीक है, वो नहीं तो ये देखेंगे, ये ऐसे, ये तो एम्बेडेड नहीं है, क्या ये ऐसे ट्राइंगल कहाँ को बन रहा है? ये है एक, तो इधर पे ये नहीं है ऐसे, ठीक है, और एक तो ये है, पर इधर पे ये ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन 3 ही है फिर। ठीक है, विच ऑफ दी फॉलोइंग, ये करके देखो, टी इज द मदर ऑफ वाई, ठीक है, एंड वाई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ यू, ये जो है सिस्टर इन लॉ है यू की, यू की सिस्टर इन लॉ, इनमें से कोई भी हस्बैंड वाइफ हो सकता है, एंड यू इज द ब्रदर, तो ये तो हस्बैंड है, फिर ये वाइफ है, एंड यू इज द, ये वो नहीं है, यू इज द ब्रदर ऑफ, यू इज द ब्रदर ऑफ, ठीक है, वाई इज द डॉटर टू, ओ नहीं, टी हैज एट लीस्ट वन डॉटर, हाँ हाँ हाँ, एटलीस्ट एक और दो है क्योंकि इस पे, तो ये तो सही हो रहा है। वाई इज द मदर नहीं, ओ इज द फादर नहीं, ठीक है। सम बॉक्सेस आर क्यूब्स, ऑल डाइस आर क्यूब्स, नो कार्टून इज अ बॉक्स, ठीक है, तो नो कार्टून इज अ डाइस, बॉक्स से बॉक्स में रिलेशन, और क्यूब का क्यूब से कोई रिलेशन नहीं है, तो कार्टून का डाइस से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये गलत। सम कार्टन, कार्टून नहीं है, कार्टन लगा है, सम कार्टन इज डाइस, बॉक्स का बॉक्स से रिलेशन है पर नेगेटिव, और क्यूब का क्यूब से रिलेशन नहीं है, तो सम कार्टन डाइस हो ही नहीं सकता, और नो कार्टन इज डाइस, बॉक्स का बॉक्स से रिलेशन था, क्यूब का क्यूब से नहीं है, तो, और कार्टन है डाइस है, कार्टन है डाइस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आइदर और लगेगा। मैंने अपनी वीडियो में बताया है, सिलॉक्स की 20 मिनट की वीडियो आप देख सकते हो। ग्रेन को लिखा RGIA, ठीक है, इसको लिखा HWAE, तो मैं इसको लिखूंगा EMLA, EMLA कहाँ है? दो जगह है, ठीक है, तो N का -1 हुआ, 20 का, अच्छा ऑपोजिट हुआ, तो S का ऑपोजिट H, EMLA H,
ए लिखा है, सी के पहले डी है, ए के बाद बी है, ए बी डी सी, बी, ठीक है यार, बी के बाद डी है, बी के बाद अगर डी है और ए के बाद बी है, बी के बाद डी है, फिर सी है, बी के पहले सी के बाद बी है, डी के बाद है सी, ए बी डी सी बी डी, ए बी डी सी बी डी, फिर ए बी डी बनना चाहिए। ठीक है, तो बी डी डी बी ए, बी डी डी बी ए, फर्स्ट ऑप्शन वही था, ए बी डी सी बी डी। ठीक, इंटू टू प्लस वन, इंटू टू, इंटू टू तो है नहीं है, तीन सात, ये क्या है, इसमें चार का फर्क, इसमें सात का, इसमें कितने का, छः तीन नौ, चार है सात है नौ है, इधर पे कितने का, इधर पे तो इंटू थ्री कर दिया। ठीक है, तो इधर पे मैं कह सकता हूँ इंटू टू किया, इधर इंटू टू किया कुछ जोड़ा, इंटू थ्री किया कुछ जोड़ेंगे ही, फिर इंटू फोर करेंगे बस, फोर से। ठीक है, 340, बस। हाउ इज जे रिलेटेड टू के, ठीक है, जे इज द मदर ऑफ आई इज द हस्बैंड ऑफ एम, एंड एम इज द मदर ऑफ के, और के इज द ब्रदर ऑफ एल, एंड एल इज द सन ऑफ आई। हाँ ठीक है ना, तो हाउ इज जे रिलेटेड टू के, फादर्स मदर या ग्रैंड मदर, ठीक है, एक ही बात है दोनों। दो है, इंटू तीन है, इंटू चार है, इंटू पाँच, पाँच, तो 120 आएगा, 120 इंटू छः, ठीक है, तो 120 आना चाहिए, सिर्फ इसमें था। लेटर्स के लिए देखेंगे भी नहीं कि क्या किया था, क्योंकि आंसर निकालना है आपको सीधे। ब्रूम स्वीपिंग के लिए यूज की जाती है, झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू यूज की जाती है, गड्ढा खोदने के लिए शवल यूज किया जाता है, सीडिंग करने के लिए सॉ नहीं, प्लगिंग करने के लिए हो, टाइम के लिए, कटिंग करने के लिए हैमर नहीं यार, टाइम, ये क्या मतलब हुआ, हो प्लगिंग सॉ सीडिंग, तो ये मुझे पता नहीं है। आरी से बीजा रोपी, कुड़ाल से जुताई, कैवेंडर से समझ, आरी से बीजा, आरी से बीजा थोड़ी झोंकेंगे, यही हो सकता है सही फिर। ठीक है, क्वेश्चन नाइन्थ, 30 मिनट बचे हैं अभी, ये तो कुछ पता नहीं मुझे, जीएस वाला है वो, इसमें क्या है यार। ठीक है, मुझे लग रहा है ये 25 देख के बी का ऑपोजिट होता है वी, जो कि होता है 22, है ना, उसमें हमने क्या पता प्लस तीन कर दिया हो। आर का ऑपोजिट से मुझे 9 दिख रहा है सीधे आई, है ना, ए का ऑपोजिट होता है 26, तो सीधे 26 ही है। सॉरी यार, बी का ऑपोजिट वी का होता 25, ऑपोजिट्स हैं ये तो, 14 का 13, 9 का 18, ए का 26, बिल्कुल ठीक। तो 23 का क्या होता है, डी डब्ल्यू, ठीक है, एच का होगा एस, तो 19 आना चाहिए, 4 19। उस पर मेरे दिमाग में चल रहा था कि बी के ऑपोजिट वी होता है जबकि वाई होता है, अभी जब किया तो समझ आया। ठीक है, मैं इसमें देख लेते हैं। प्रिया टेक्स इतने का लोन 12% एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, शी रिपेज इतना, ये अभी नहीं करते हैं, इसको करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बट टाइम लेता है कभी कभी। फाइंड द रिमाइंडर दिस व्हेन डिवाइडेड बाय 119, 119 कैसे डिवाइड करोगे, ऊपर क्या रिमाइंडर बचेगा, -1 की पावर 21, -1 ही बचेगा, देखो सर, सॉरी सॉरी, +1, 1 की पावर 21 हो तो 1 ही बचेगा।
Maria baked a cake and sold it for Itta, making a profit at thus. She planned to bake another cake which cost the same to make and wants to ensure she makes a profit of Itta. At what price should Maria sell her next cake to achieve a 80% profit? ठीक है, उसने इतने में बेचा है तो 10 के हिसाब से 11/10 ये उसकी एसपी थी, तो उसके हिसाब से 120 इंटू 10 ये उसकी सीपी थी। अब उसको इस 15% का प्रॉफिट चाहिए है तो 23 115/100 मतलब ये एक आटा 60 बार पे 6 से 120 और 18 138। इफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस इज एक्स तो वो क्या होगा 24 × 54/100 ठीक है पूरे पे रूट चढ़ा है एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 एंड दिस इज ठीक है ये होगा 4 का स्क्वायर/8। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई तो एक्स माइनस वाई देखना है मुझे बस। तो 24 × 54 24 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 4 और 54 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 6। तो एक 6 तो बाहर लेना ही है, 4 से 2 आ गया 3 से 9 आ गया तो 6 × 6 36 मतलब 3.6 इसका 10 बाहर आएगा 3.6 माइनस ये 4 × 4 है 4 ने इसको काटा 2 बार पे 2 ने इसको काट दिया 2 बार तो 1.6। Two trains started running on circular tracks simultaneously with speed this and this in opposite directions. Speed का सम होगा. If the circumference of the circular track is 330, find how many distinct points they will cross each other. Distinct point में इससे कोई मतलब नहीं रहा. S1, S2 करोगे आप, ठीक है? दो रनर है, एक की ये थी स्पीड, एक की ये थी स्पीड. इसका रेशियो काटा, ये बना. अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑपोजिट डायरेक्शन में कह रहे हैं तो इसका रेशियो जोड़ दो बस 5 होगा. ये इतना इजी क्वेश्चन है, इसके लिए फालतू के सॉल्यूशन आप मत करो. If the sides of triangle are this and this x, then find the number of possible values. तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो x है वो इन दोनों के सम से कम होगा और डिफरेंस से बड़ा होगा, ऐसा बोल सकते हैं. तो इसके लिए कह सकते हैं इधर क्या आया 4x और 13 + 9 22 तो 22 - 4 करोगे आप कितना आएगा. ये देखो ना तो ये इंक्लूडेड है ना तो ये इंक्लूडेड है, तो 22 में से 4 घटा दिया तो 18 है, 18 में से भी एक घटाओ तब आपको सही आंसर मिलेगा क्योंकि दोनों इंक्लूडेड थे और दोनों को इंक्लूड नहीं करना है. 3x माइन ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बोल सकता हूँ मैं इसे. ठीक है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अपॉन ए इंटू बी इंटू सी दिख रहा है मुझे. तो क्या इन सबका सम जीरो है या नहीं. 3x गया 5 से 5 ठीक है. ए प्लस बी प्लस सी जब जीरो होते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू होता है 3 abc. तो abc से abc कटा 3 बचा. Which of the following is the same as the number x की पावर 21. x को अगर 1 रख दिया तो यहाँ 1 ही आएगा. 1 की पावर 21 तो 1 की पावर 20 आएगा देखा जाए तो 1 की पावर 22 1 की पावर 21 ये सही है फिर. ये तो ऐड थोड़ी होगा. ठीक है. द रेशियो ठीक ए और बी है जिसकी रेशियो ये है 8 years बिफोर 8 years. ठीक है दोनों तरफ 8 माइनस कर रहे हैं तो 11:17 बन रहा है. तो 17 × 5 हुआ 85 माइनस 77 इक्वल्स टू इन दोनों का क्या डिफरेंस है. तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इसी 8 का मल्टीप्लाई इन दोनों के डिफरेंस में जो कि है 6. तो इसको इससे माइनस किया 5 और 3 8 8 यूनिट 8 से 8 गया 1 यूनिट की वैल्यू है आपके 6. तो ए की वैल्यू कितनी है बिफोर 8 years. ठीक है अभी ए की एज कितनी है ये और बी की है 7642. फाइंड द एज ऑफ बी आफ्टर 4 years 46. ए की वैल्यू ये है बी की वैल्यू ये है इससे पता चलता है सेम नंबर्स हैं साइन का डिफरेंस है तो जो ए है वो 1/b है. तो 1/b प्लस इसको ऐसे बोलेंगे क्या. इसको
इसको ये बोल सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ए भी इस दोनों से बस ये कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। तो इधर पे ए स्क्वायर कर दो, वो होगा 16 + 4, सॉरी 16 + 2 माइनस का 8√2, और इधर आएगा 16 + 2। यार छोड़ो, शायद ये ऐसे समझ तो नहीं आ रहा क्योंकि डिनोमिनेटर है नीचे। 16 + 2 प्लस का 8√2, 8 रूट से उसमें 8 रूट हो गया, 16 × 2 32, 2 2 4 तो 36 आ रहा है ऊपर। तो नीचे क्या बनना चाहिए, 4 का स्क्वायर -2, 16 -2 14, तो 2 से काटा 18/7। ठीक है, न्यूमरेटर देख के भी उधर पर मान सकते थे सीधा आंसर। रेशियो ऑफ टू रेडाई ऑफ टू सर्कल्स ये है रिस्पेक्टिवली, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इतना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है डी का जो भी दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर है 100, माइनस 14 में से 9 गया तो बचा 5, 5 का स्क्वायर 25 होगा, इधर पे बचेगा 75, वो होता है 25 × 3, स्क्वायर रूट करोगे 5√3 आएगा। ठीक है, ये सिंप्लीफाई रखना है। अच्छा, ये मेरे लिए पूरा ए तो नहीं बोलेंगे, हाँ ये पूरा ए है, ये भी है, सही है। तो ये है ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, तो दोनों को मैं क्या करूंगा, दोनों को जोड़ूंगा, 421 प्लस 391 प्लस 421 माइनस 391, है ना। ये हुआ ए प्लस बी, और ए माइनस बी क्या आएगा मुझे पता है, यहाँ से अगर ये कट के 421 × 2 बन रहा है, इन टू में इधर पे क्या क्या बचेगा, इधर बी और बी बचेगा। ठीक है, तो 391 × 2 बचेगा इधर, 391 है ये, और नीचे तो 391 और 421 थे ही मल्टीप्लाई में, तो 4 आएगा इसका आंसर। In an acute triangle, the circumcenter is outside the triangle. In right angle, ये तो नहीं सोच सकता हूँ अभी, आगे बढ़ते हैं। A solid hemisphere is melted to form two cuboids with equal length। ठीक है, सॉलिड हेमीस्फेयर को मेल्ट किया तो उसका उसके वॉल्यूम से मतलब है 4/3 πr³ होता है जो कि ठीक है, टू क्यूबॉइड्स बनाए विथ इक्वल लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, तो उनका क्यूबॉइड है तो LBH, और दो हैं तो 2LBH। ठीक, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेयर इज इतना, कर्व सरफेस, एक सेकंड, हेमीस्फेयर है तो 2/3 πr³ होगा। कर्व सरफेस एरिया बोला है तो वो होता है 2πr² होता है कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फेयर का। हेमीस्फेयर है, कर्व सरफेस एरिया तो 2πr² होता है, वो है 2772। ठीक, एंड द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली, इनका जो ये है ये ऐसा है। ओके, फाइंड द डिफरेंस, इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि ये है 2 × 22/7 की वैल्यू रखी, 22 इसे काटेगा एक बार पे बचेगा 5, इसको काटेगा दो बार पे तो 44, 57 में से माइनस हुआ 132, तो 6 बार पे काटेगा, दो भी इसको काट देगा 63 टाइम्स पे, तो 7 और 3, तो रेडियस आ गया 7 × 3, हाँ 21। तो इधर मैं लिखूंगा 2/3 πr³ में 21 × 21, एक 21 बढ़ जाएगा, और इधर क्या है ट्वाइस ऑफ, ये सब अगर respectively find the difference between the height sorry find the difference between the breadth and height, ब्रेथ और हाइट इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता करना होगा मुझे, जो कि है 7 का मल्टीपल, सभी है खैर। ठीक है, तो इधर है 33 × 21 × 14 × x³। ठीक है, इनके साथ का जो वो है, तो दो से तो दो कट गया, एक एक 21 से एक 21 भी कट गया, और 11 से दो बार, 11 से तीन बार, 3 से 7 बार, 2 से भी 7 बार,
तो सब कुछ ही घट गया है फिर तो। एक्स क्यूब के हिसाब से एक्स तो बन ही आ रहा है फिर। इन दोनों का डिफरेंस जो है 14, 21 - 14 7 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट वन है। In a seminar, the total number of males is इतना, 52 number of males is equal to, ठीक है, एक सेकेंड, 52 नंबर ऑफ, ये टोटल मेल्स है, ठीक है, इसका जो 52% है इज इक्वल्स टू 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स। तो फीमेल्स हैं कितनी, 3 से काटा 150 बार, और 5 से काटा 2 बार, 2 ने काटा 26 बार, तो 15 × 2, 300, 15 × 6, 90। तो फीमेल्स हैं आपकी 390। If 40% of females are postgraduates, ठीक है, the number of females who are postgraduates, इसका 40% 4/10 के हिसाब से, 4 से, ये तो मुझे नहीं करना, 4 9 36, 4 3 12, 12 + 3 15 156। ओके, 4 × 20 25, 3 12, 3 15, ठीक है। What is the value of this, ठीक, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो डिवाइड पहले होगा, तो 288 × 54, ये है 54 अपन 162, माइनस, इधर पे भी डिवीजन का है साइन, बेस अपॉन बेस इंटू 39, प्लस का ऑफ 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 है, तो 4 × 18 × 3 54, इन सबका डिवाइड होगा फिर 25 से। ठीक, ये 2 से तो जा नहीं रहा है, सॉरी 4 से नहीं जा रहा है, तो 2 से जाएगा, 2 से 81 टाइम्स, 2 से 27 टाइम्स, 81 से कितनी टाइम्स जा रहा है, 8 टाइम्स नहीं, ये नहीं से जा रहा है, तो 16 तो 18, हाँ, 9 से 9 बार काटूंगा, 9 से काटूंगा 3 बार, 2 बार, 9 ने इसको काटा 3 बार, तो ये जो पूरा है ये कितना बन गया, 96, ठीक है, माइनस का 13 से 3 बार, 13 से 6 बार, और ये 2 बार, तो इधर है 12, प्लस का 4 4 16 20 21, 4 4 16 20 21, ठीक है, इसमें मैं 96 - 12 कर दिया, तो कितना बचा, 4 और 8, ठीक, ये हुआ 0, 28 29, 29 तो बन ही रहा है, 300 बन गया, अपन 25 इसको काटेगा 4 बार में, तो 4 × 3 12। ये है प्रोडक्शन ऑफ मेज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, प्रोडक्शन ऑफ मेज जो है, मेज जो है 6/7 टाइम्स द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मेज इन ऑल गिवन ईयर्स, ठीक है, तो इन सबका गिवन ईयर्स कितने ईयर हैं, 5 1 6, टोटल ईयर्स हैं 6, तो मुझे 6 से डिवाइड करना होगा, और इनका सम चाहिए अब मुझे, 6 इसको 6 से काटेगा, इनका सम क्या आएगा, 56, मतलब ये होगा 88, इसमें 48 जोड़ा तो बना 6, 12 13, इसमें 28 जोड़ा तो बना 4, 15 16, इसको जोड़ा 2 और 6 को 8, 5 और 3 को 8, ये कितना बन रहा है, 4 और 8 12, 24 1 25, ये इसको काटेगा 3 बार पे 21, तो 6 बार पे, तो 36, 36 कहाँ है, 2005 में था बस, लगा दो 2005। साइन 42 अगर ये है, ओके, मैं मान लेता हूँ ये 90 है, ये 42 है, ये 48 है, तो साइन 42 का मतलब है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या आएगा आपका, क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, हाँ। अब सेक 42 बोल रहा है, सेक 42 इसी एंगल से, तो सेक 42 क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में क्या, बेस, ठीक है, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, प्लस का साइन 48, अब इधर से देखोगे तो परपेंडिकुलर क्या ये हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपन हाइपोटेन्यूज ही आएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो क्यू स्क्वायर रूट ही हट जाएगा ऊपर से, तो रूट हट जाएगा बस, हाँ, और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये थोड़ी कट रहा है यार, ये तो ऐसे ही रहेगा, 2 क्यू स्क्वायर अपन माइनस पी स्क्वायर, तो देखो कहाँ लिखा है ऐसा, 2 क्यू स्क्वायर होना चाहिए और माइनस का पी स्क्वायर सिर्फ इधर है, लगाओ आंसर और आगे बढ़ो।
ठीक है। The length of a tangent from an external point of a circle. uh, the length of a tangent from an external point of a circle is 8 units. ठीक है, ये टेंजेंट है, इसकी यूनिट है 8, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये जो पॉइंट की बात कर रहे हैं जहाँ से लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 12। ठीक, अपन को पता है टेंजेंट पे 90 गिरेगा रेडियस, ये रेडियस है, ये पूरी है 12, तो ये हाइपोटेन्यूज हुई। 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, चार चार 8, ये क्या होता है 16 × 5, तो मतलब 4√5। रेडियस ही पूछा है, 4√5 होगा आपका आंसर। डायमीटर भी पूछ सकता है रेडियस निकलवा के, है ना, इसीलिए एक बार देखना बहुत जरूरी है। द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ एथलीट्स वाज 65 if 8 athletes each with an average weight of 70 leave the group and 4 athletes each with an average weight of 73 join the group। ठीक है, 8 × 7 56, ये माइनस हो रहा है वेट, और जुड़ क्या रहा है, इसके ऐसे मल्टीप्लाई किया, 4 × 3 12, 28 29, ये जुड़ रहा है, इवेंचुअली कुछ तो कमी हो रहा है, तो ये 5 हुआ, 10 में से 2 गया 8, 30 से 25 एक 26, माइनस का ये हो रहा है, और कितने लोग आ रहे थे, 8 लोग जा रहे थे और 4 लोग आ रहे थे। ठीक है, तो इवेंचुअली 4 लोग चले ही गए हैं उसके बाद भी, और एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एथलीट्स वाज 65, तो अगर पहले एक्स लोग थे तो उनका 65 है, अब कितना होना चाहिए, न्यू एवरेज 65 माइनस दिस अपॉन 6 x माइनस 4। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप डिक्रीजेस बाय दिस। अच्छा, हम्म, ठीक है, ये जो है अब कितना बन जाएगा, 65 माइनस का 0.4 kg बस। हाउ मेनी एथलीट्स वर इनिशियली इन द ग्रुप, तो दिस और दिस, 65 से ये गया, माइनस से माइनस गया, ये हो गया 4/10, 4 इसको काटेगा 6 बार पे और 7 बार पे। ठीक, तो 670 इज इक्वल्स टू x-4, कुछ तो गलत है, पता नहीं क्या दिमाग घूम गया एकदम से, होती हुई चीज नहीं है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ अभिषेक। ठीक है, ये सारी जो है इनकम ही शो करता है अभिषेक की। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ अभिषेक इन द ईयर 2020, 2020 एंड 2021 टुगेदर। ओके, 20 और 20 21 की चाहिए साथ में, तो 20 और 20 21 है ऑरेंज, और ये तो हुआ 51, और डिफरेंस पता करना है इन दोनों का साथ का, और 22 का, 22 है येलो, इसमें से 14 माइनस कर रहे हैं अगर, तो 6 बढ़ाया 20, पहुंचा 20 से 31, तो 37। ठीक है, अब 100% की वैल्यू है इतनी, तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3600 से, फिर इसको मैं 3600 नहीं करूंगा, इसको मैं कह दूंगा 36 का स्क्वायर, जो कि होता है 126, है ना, 36 का स्क्वायर होता है 1296, हाँ 37 का होता है 1369। ठीक है, इसी में इसको मैं समझ लेता हूँ ऐसा, और 36 ये 36, ठीक है, 2 और 10 13 और 13, 13325, और 00 मल्टीप्लाई होंगे जो छोड़ दिए अभी। टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन कोच 6, कोच 6 है ये, इसमें मेल्स और फीमेल्स कितने हैं, 8 6 4 और 4। ठीक है, इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ इन कोच 3, कोच 3 में कितने हैं, 32 है, तो 2 माइनस 1 माइनस 32 के हिसाब से, 4 से 3 बार, 4 से 8 बार, ये काटेगा 12.5, 12.5 इंटू 3 होगा 37.5। अरे ऐसे भी देख सकते हैं, 3/8 की वैल्यू थी 37.5 डायरेक्ट। He can complete a work in 90 days, we can complete the same work in
10 days by working 7 hours a day। अच्छा, ए 90 डेज में कर रहा है और बी कर रहा है 10 दिनों में 7 घंटे काम करके। ठीक है, देखा जाए तो ये 70 आवर्स के हिसाब से करता है। वर्किंग 9 आवर्स अ डे, दे कैन jointly complete the task in 30 days। तो पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए कर रहा है 90 दिन काम, पर पता नहीं कितने आवर्स अ डे, तो इसका एच आवर्स अ डे समझ लें। और बी कर रहा है 10 दिन काम 7 आवर्स अ डे, तो ये इसको इतनी बार पे काटेगा, तो ए अपॉन बी बन रहा है 7/h, ऐसा बोल सकते हैं। वर्किंग 9 आवर्स अ डे, दे कैन jointly complete the task in x days। तो अगर दोनों जन 9 घंटे साथ में मिलके काम करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी तो ये है। अगर 9 के हिसाब से काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में काम कर लेंगे? यार इसको कैसे करेंगे? ओह, ठीक है, छोड़ो ये। पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू। पी है, क्यू है, सॉरी, हाँ, एट क्यू है, बिल्कुल ठीक। पी क्यू आर, पी है 30 तो आर होगा 60। ये तो 90 बोल ही दिया हमने। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन आर। टेन 60 की वैल्यू बोल रहे हैं जो कि होती है √3। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स विल गिव मोर डिस्काउंट? ठीक है, तो बाय, इसमें देखो क्या करते हैं, फ्री अपॉन टोटल। ठीक है, ध्यान रखना ये आपका डिस्काउंट होगा, अगर आपको नहीं पता है तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो स्कीम ए में क्या है, सी फ्री 10 है और टोटल कितना है 29। ठीक है, तो 1000/29। और बी का क्या है, बी में 12 फ्री है, नीचे क्या है 32 × 100। ओके, तो 4 से काटा 300 बार, 4 से काटा 8 बार, 3/8 होता है 37.5। ठीक है, ये कितने दे रहा है आप, 29 × 3 29 × 3, हाँ, 29 × 3 87। का मतलब 13 बचा और जीरो। 29 × 5 होता है 145, तो 4 ही लगाना पड़ेगा। इधर से दिख रहा है कि जो बी है वो ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है 37.5 का। चलो, आज थोड़ा ठीक ठीक टाइम बच गया है, 7 मिनट है, जुडिशियसली इसको यूज करना होगा बस। A can complete a work in 90 days। B can complete the same work in 10 days by working 7 hours a day। A करता है 90 दिन काम, B करता है, A का जो 90 दिन का काम है ना बराबर से A की ही एफिशिएंसी से, वो B 10 दिन 7 घंटे के हिसाब से कर पाता है। तो A को मान सकते हैं 7x, B को मान सकते हैं 1x इस हिसाब से। तो अगर मैं बोल दूं कि टोटल वर्क हुआ क्या, 7x × 90, ये हो गया आपका टोटल वर्क। एक ए से निकाल लिया ये, ठीक है। तो अगर ये लोग जो है 9 घंटे काम कर रहे हैं दोनों जन मिलके, तो 8x के हिसाब से 7x × 90 काम कैसे करेंगे, x से x कटा, 9 से ये 10 बार कटा। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एथलीट्स वॉज इतना है। 8 athletes with an average weight of 70 kg leave the group and 4 athletes, इसको बिल्कुल बेसिक से कर दें क्या, हाउ मेनी एथलीट्स वर देयर इनिशियली। तो मैं कह सकता हूँ कि सम अपॉन एक्स एथलीट्स थे तो ये 65 था, तो जब 8 लोग गए, 8 - 56, और 4 लोग आए, तो प्लस का 4 × 3 12, 28, 29 हुआ। ठीक है, इसमें से आप इसे माइनस करो, बचा 8, और 30 से 25 एक 26,
तो माइनस ये हो ही रहा है। तो और भी इसमें फर्क क्या आ रहा है? सम कितना है? 65x, तो 65x माइनस 268 का सम हो रहा है। और अब जो है वो कह रहे हैं कि आपका ये 0.4 से कम हो गया, तो 65 माइनस 0.4 कम हो गया। और लोग भी कितने बचे हैं अब लोग बचे हैं x-4। ठीक है, तो इधर पे क्या लिख सकते हैं इसका? 65x माइनस 65 इंटू 4 माइनस 0.4x प्लस का 1.6। एक्सक्यूज मी। तो इस 65x से तो ये 65x कट गया, उस तरफ बचा सिर्फ माइनस का 268। इस तरफ क्या क्या है? 6 इंटू 5 0, 24 प्लस 2 26। ठीक है, माइनस का 0.4 प्लस का 1.6। ये 0.4 उधर जाएगा तो 4/10 बोल दूँ ना उसे। 268 में से ये गया तो 8 प्लस ये 9.6 बना। x की वैल्यू है 24। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करना पड़ा। 63rd क्वेश्चन। यार ये छोड़ो। 91। हाँ हाँ हाँ, 3 मिनट है, कोशिश करेंगे इसको कर लेंगे। प्रिया टेक्स अ लोन ऑफ इतने एट द सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले साल का उसका इंटरेस्ट क्या है? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? 5500 इंटू 12। 12 12 इंटू 2, 12 इंटू 5 66,000 होगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर शी पेज 30,000। तो इसमें से जो है वो 30,000 दे रही है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 5240। ठीक है, 30,000 देने के बाद ये बच रहा है। अब इफ प्रिया क्लियर्स ऑल द रिमेनिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, तो यहाँ पे 12% का आप निकाल लो, 112 कौन ये, क्योंकि इसका अमाउंट चाहिए। हमें जस्ट पे एट द सेकंड ईयर, तो एक तो वो ये पे करेगी और ये पुराना इंटरेस्ट पे करेगी। तो 2 से 224 बार, 2 से 224, 5 से 60 बार और 5 बार, 5824। ठीक है, और 2 जीरो, इसमें से रहेंगे 66,000। 8 4 कहाँ है? 8 4 सिर्फ एक ही जगह है, इतना काफी है मेरे लिए। ठीक है, आप भी ऐसे ही किया करो कैलकुलेशन। 2 मिनट बचे हैं यार। नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी कोई खास नहीं है, क्योंकि जीएस में बहुत दिन से कुछ तुक्के चल रहे थे, अब गोली मार में बहुत हो गया। आज भी थोड़े बहुत तुम्हारे हैं वैसे। यार ये क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहा है? A can complete a work in 90 days, B can complete the same work in 10 days by working 7 hours a day. Working 9 hours a day, working 9 hours a day, they can jointly complete the task in 8 days. अगर 9 घंटे काम कर रहे हैं ए और बी अपनी एफिशिएंसी से एक्स दिनों तक, ठीक है, और ए कर रहा है 90 डेज काम, ए कर रहा है 90 डेज काम, बी कर रहा है बी की ही एफिशिएंसी से 70 आवर्स काम। ये टोटल आवर्स में हो गया, ये अभी आवर्स में है नहीं। दिक्कत हो रही है कि ए के आवर्स समझ नहीं आ रहे, वो आवर्स में नहीं दिया यार उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से। ये पूरे 70 आवर्स काम कर रहा है, अगर हर दिन 7 आवर्स अ डे 10 दिन काम करेगा तो। क्या है ये?
In an acute triangle, the circumcenter is outside the circle. Outside the circle, yeah, right angle triangle, the circumcenter is the midpoint of the hypotenuse. अरे हाँ यार, सही तो है ये। शायद तीनों सही थे। देखिए जरा, फिफ्थ वाले में क्या गलत हो गया। अब एक काम करेंगे, रोज ही 2 5 10 मिनट में अपन देख लिया करेंगे कि क्या 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 गलत हुआ, क्या रह गया। हम यानी इंग्लिश के वर्ड्स बन सकते हैं सेकंड से, फोर्थ से और फिफ्थ से। EAR। और क्या बनेगा यार, इससे तीन बना दिया। EAR एरा। सही तो है। बंदे तो सही है। इसका आंसर क्या था? रणथंभौर राजस्थान, ये ऑड है। रणथंभौर राजस्थान में है, भुज गुजरात में है। अच्छा, ये सब एयरपोर्ट थे। केम्पे गोवड़ा। इससे मैं समझ सकता था, शीशे पर ध्यान से देखा ही नहीं इतना। जीएस की तो बात छोड़ो, मैथ्स में देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन था। वर्क डन बाय बी इन वन डे। वर्क डन बाय ए इन वन डे। ओ शिट, इतने इजी तरीके से कर लिया ऐसे। बी का वन डे वर्क निकाला, ए का वन डे वर्क निकाला, और दोनों की एफिशिएंसी हो गई है। तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़ी और 9 डे के हिसाब से काम कराया, तो ये आया 16/70। तो अब वन का काम है, तो 16/70 बन जाएगा 17/60। यार कितना इजी क्वेश्चन था ये तो। इंग्लिश में क्या गलत हो गया? हद है। ये देखो क्या फालतू की मिस्टेक है। मैं कह रहा था वुक का मतलब फैशन होता है, और सिनोनिम पता नहीं कहाँ से एंटोनिम समझ के आउटडेटेड मार्क कर दिया इसका। ये एंटोनिम था। बेवजह 2.5 मार्क्स चलेगा। सेकंड में अल्लाह और डैश द डैश ऑफ टबैको continues to captivate many। अच्छा, अल्लाह और आएगा ऐसे। द डैश ऑफ, अल्लाह होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग पावरफुली मिस्टीरियस, वो तो ठीक है। अरे यार, अल्लाह और ऐसे नाम की तरह यूज हो जाएगा। सही है। ठीक है, वैसे तो अल्लाह और मुझे लगता है एडजेक्टिव है। ऐसे कैसे आ सकता है अगर? अगर आ सकता है तो आप बताना, आपको अगर पता हो ये चीज कि वो सही आया। ठीक है, स्कोर देख लेते हैं क्या है आज। सही है यार, स्कोर आज 150 आए हैं। ऑल बोर्ड के मार्क में 150 ठीक लगता है मुझे स्कोर, इसलिए आया है। पहली बात तो मैंने क्या किया, इतने दिनों से जो जीएस में मैं 20 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता, जबकि मेरी जीएस है नहीं इतनी ठीक। तो आज मैंने वो कम किया। 14 मार्क्स, तब भी वैसे भी 14 15 16 20 आते थे, अभी भी वही है, ठीक है मेरे लिए। रीजनिंग में सही था। एक क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड, एक क्वेश्चन गलत। और मैथ्स में 2 क्वेश्चन नहीं हो पाए। एक क्वेश्चन तो चलो इजी था, और एक क्वेश्चन में समझ नहीं पाया था। इंग्लिश में 2 गलत, उसमें भी यार दोनों गलत होने नहीं चाहिए थे, खासकर वो सिनोनिम वोग वाला। आराम से ये 156 तक तो आ सकते थे, 156 + 160, है ना। ठीक है, अभी आप एक चीज देख सकते हो ये, कि सबसे पहले जो मैंने मॉक लगाया था अभी 4 5 दिन पहले, उसमें 131 138 थोड़ा बढ़ा, फिर 131 ही आया, 146 150, थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो रहा है ना। और ये सब विदाउट जीएस हो रहा है, जैसा भी है। तो प्लीज, अगर आपको मेरी वीडियोस से वैल्यू मिलती है तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को। और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। ये सारे मॉक जो है कितने हैं, 50 हैं। अपन ये सारे मॉक्स लगाएंगे सीजीएल टीयर 1 के पहले, है ना। कोशिश है अपनी कि जो भी मेरे साथ जुड़े हों, और सभी की और मेरी, कि अपन 160 प्लस तो एनी हाउ लाएं सीजीएल टीयर 1 में। ये अपना टारगेट है। और मॉडरेट शिफ्ट में, वो भी अगर डिफिकल्ट शिफ्ट है तो 150 तो लेके ही आए एटलीस्ट। एनी हाउ 150 आने ही चाहिए, अगर डिफिकल्ट शिफ्ट है तो, है ना। इस वक्त मैं जीएस में भी काम कर लूंगा,
तो मेरे 20-25 मार्क्स भी थोड़े ऐसे ही बढ़ने लगेंगे। ठीक है यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं सिक्स्थ मॉक के साथ। गुड बाय।